Apollo Hospitals, Asia's pioneering integrated healthcare services provider, inaugurated its newest facility in Swargate, Pune. The hospital will initially open with 250 beds as part of a phased launch, with plans to expand capacity further to meet growing healthcare needs across the region. Apollo Hospitals Pune represents a deliberate expansion of high acuity, technology enabled care in Western India. The campus brings together advanced surgical robotics, precision oncology, comprehensive critical care, and specialist programs in cardiac sciences, transplants, orthopedics, and mother and child health, all built on a unified digital backbone. Apollo Hospitals Pune will be equipped with best-in-class infrastructure and the latest medical technologies to deliver exceptional patient-centered care across multiple specialties. Apollo Hospitals has been investing in and building on technology for many, many years. Today, we are bringing it to Pune, right? And this is technology that we have built ourselves and also in collaboration with the biggest technology companies like Microsoft and Google. You asked how will it affect patients? It will affect patients from even before they walk into the Apollo Hospital. Today you can go to the website and there is an AI agent. You can speak to it in Marathi. You can type in Marathi. It will find out what your symptoms are. You can upload your reports, your prescriptions, and it will find the right doctor for you, and it will make an appointment with that doctor before you come in. If a patient is picked up with an ambulance, that ambulance is immediately connected to our command center, and a doctor will look at the patient, look at the patient's vital signs, and guide the patient through that. Throughout the patient's journey, technology is always by the side of a doctor, helping them make the right diagnosis and make sure that bad things don't happen to patients. This is Apollo's commitment to patient safety and good outcomes. सर, ये पूना का फर्स्ट स्मार्ट और फुल्ली इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल है. इस तरह से ये डिफरेंट है. पूना में एक भी हॉस्पिटल नहीं है जो स्मार्ट और फुल्ली इंटीग्रेटेड है. हमारे पास वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है. जैसे मैंने आपको बताया, ये हॉस्पिटल में आपको बिलिंग काउंटर नहीं है, एडमिशन डेस्क नहीं है, कियोस्क है जहां पेशेंट जाएगा, अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन करेगा. हमारे पास छोटे टैबलेट्स है जो हम पेशेंट के रूम में लेके जाते हैं. जब भी पेशेंट आता है तो बेड साइड एडमिशन भी हो सकता है, बेड साइड बिलिंग होता है, 3 स्टेप्स बिलिंग होता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इधर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो बाहर नहीं है, कोई भी हॉस्पिटल में नहीं है. मैं इधर 30 साल से काम कर रही हूँ वेरियस हॉस्पिटल्स में, इसलिए मैं ये दावे के साथ बोल सकती हूँ कि ये जो डिजिटल इंटीग्रेशन है, हमारे स्मार्ट ICUs है, कमांड सेंटर्स है, ये कोई भी हॉस्पिटल में नहीं है. तो इस तरह से हम थोड़े डिफरेंट है दूसरे हॉस्पिटल से. India's first AI hospital. This is, I think, to the level that it is using AI and technology, it is one of India's first hospitals. Okay. सर, कितना आप होप करते हैं कि मेडिकल टूरिज्म में ये आपका ये फैसिलिटी जो है वो बेहतर कर पाएगी, खास करके इंडिया में अभी काफी इसको देखा जा रहा है कि मेडिकल टूरिज्म के लिए हम हब बनने जा रहे हैं. तो ऐसे में ये हॉस्पिटल इसका कितना ये कर लेगा? मेडिकल टूरिज्म तो अभी बढ़ ही रहा है. पूना का कनेक्टिविटी अच्छा है और जो भी लोग आते हैं वी आर वेरी अफोर्डेबल. अपोलो इज अपना जहाँ 42 इयर्स का लेगेसी है. इट हैज़ ऑलवेज बीन अफोर्डेबल, कंपैशनेट केयर, पेशेंट सेंट्रिक केयर. तो ये सब चीज़ें जो भी बाहर से आते हैं उनको ये लगता है कि हमारा एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, हमको कंपैशनेट केयर होनी चाहिए और पेशेंट सेंट्रिक होना चाहिए. सो ये सब चीज़ें हैं हमारे पास एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इट विल डू वेरी गुड इन द मेडिकल टूरिज्म मार्केट. सो अपोलो का जो हम लेगेसी बोलते हैं, इट्स ऑलवेज हील इन इंडिया, हील विथ इंडिया. सो ये जो है हमारा कैप्शन, आई थिंक वी होल्ड ट्रू टू इट. जो भी इधर हमारे चार्जेस है, आप बोल रहे हैं कि अफोर्डेबल है कि नहीं, सो आई एम रिपीटिंग इट, बहुत ही अफोर्डेबल है. आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हो. क्यों अफोर्डेबल है? क्योंकि स्केलेबिलिटी है. हमारे पास इतने सारे हॉस्पिटल्स है, 72 हॉस्पिटल्स है, 10,400 बेड्स है. ये सब चीज़ें हमारे कॉस्ट को कम करते हैं और ये कॉस्ट का जो फ़ायदा होता है हमको, वो हम पेशेंट को देते हैं. इंडिया की आयुष्मान भारत स्कीम है, महात्मा फुले स्कीम महाराष्ट्र में है, ऐसे जो स्कीम है शहरी गरीब जो वो अपने यहाँ कैसे हो? So we are in the process. We are in the process. Yes. Very early now, we are working with the insurance companies, the TPAs, and we are starting to sign them one by one. Keep in mind, we are only 1 month since operation. So as we scale up, we will engage with more payers.
Our hope and the chairman's vision, you heard about it, from preventive care to take care of the maximum number of patients and touch their lives. So we are still looking at enrolling all of the insurance companies, Yes. and more to come. And we will continue to work with the media as we expand coverage. Yes, definitely. एआयचा वापर करून रुग्णांना ट्रीट केलं जाणार. हे तुम्ही बरोबर म्हणताय की हे पहिलंच हॉस्पिटल आहे जे पूर्णपणे AI बेस्ड असणार आहे. म्हणून बिलिंग डिपार्टमेंट ही जी गोष्ट प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये असते आणि ती प्रत्येक हॉस्पिटलची सर्वात वाद होणारी जागा असते खरं सांगायचं तर, स्पेशली प्रायव्हेट हॉस्पिटल्सला. तर आम्ही बिलिंग डिपार्टमेंट ही गोष्ट एलिमिनेट करतोय. आम्ही पूर्ण ट्रान्सपरन्सी आणतोय. माणूस स्वतः त्या किऑस्कमध्ये जाऊन बघू शकतो की आत्तापर्यंत माझ्यावर काय काय उपचार झालेले, त्या सर्व्हिसेसची काय काय कॉस्टिंग आहे. म्हणून आम्हाला पैसे जास्त लावले गेले, टॅक्स जास्त लावला गेला, हॉस्पिटलनी हिडन चार्जेस लावले, हे ज्या गोष्टी असतात त्या सगळ्या एलिमिनेट होतील. कारण बिलिंग पेशंट स्वतः करतो आणि पेशंट स्वतःचं बिल हवं तेव्हा बघू शकतो, स्वतःच्या रूममधून इंटरिम बिल्स भरू शकतो, त्याप्रमाणे स्वतःचे पैसे अरेंज करू शकतो. तर मेन जो प्रॉब्लेम असतो की फायनान्सेस आणि हेल्थकेअरमधला, तो आम्ही एलिमिनेट करायच्या मागे आहोत AI मधून. इवन OPD बेसिसवर जेव्हा पेशंट्स येतात, जसं तुम्ही सुपर मार्केटमध्ये जाऊन वस्तू घेता, बास्केटमध्ये टाकता, तुमचं बिल करता आणि जाता, तसं तुम्ही इथे येऊन किऑस्कमधून स्वतःचे सगळे सर्व्हिसेस सिलेक्ट करू शकता. जे तुम्हाला इन्व्हेस्टिगेशन सांगितले किंवा प्रिव्हेंटिव्ह चेकअप्स, त्याचं बिल करू शकता. मग आमच्याकडे रोबो आहे जो तुम्ही पाहिलेला आहे, तर तुम्हाला इकडे तिकडे विचारायची गरज नाही आहे की आम्ही या जागी कसं पोचू. तो रोबो तुम्हाला जिथे जायचं आहे, तुमचं जे डेस्टिनेशन आहे तिथपर्यंत पोचवेल.